Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. While the engine is the heart of any truck or bus, the body is equally important to complete the ecosystem. Body fabrication, although a lucrative business, is still considered very much unorganized. Over the years, truck and bus body fabrication has undergone many changes, for the better, of course. OEMs have spent huge sums to ensure that the body of any truck or bus, especially the cabins, are customer friendly and provide utmost comfort and, more importantly, safety to the passengers and the drivers. However, there is still a substantial number of transporters who get the fabrication done from private players, and there are a number of reasons for the same. But the contention in this case has been safety, as it is believed that the private players compromise on safety and quality. Well, not all may be the same, and there are always exceptions, just like the company we are featuring today. Sinati Automotive Private Limited is the brainchild of Naresh Kumar Yadav, but Sinati has an interesting story of its inception. Naresh Yadav was a tourist guide specializing in handling French tourists, a career that he built after a lot of study and hard work. However, entrepreneurship was his calling, and although he took the leap into bus body building, the timing went awfully wrong. COVID dealt a huge blow to his business plans. COVID dealt a huge blow to his business plans, but he still believed that he could pull this off. And he sure did that, which got us interesting to feature his journey. What attracted us most about Naresh was his caring attitude towards his staff and the level of safety standards, not only in the products but also in the fabrication process. Extreme care is taken to ensure that the workers, over 350 of them, are safe. Besides safety, Naresh also ensures that the staff get their meals on time, for which he has built an in-house kitchen which provides meals to every staff member every day. So let's dive into the story of Naresh Kumar Yadav and find out what Sinati Automotive is all about. Naresh ji, Sinati, ये नाम कहाँ से आया सबसे पहले तो? सिनाटी ये जो है मैंने सर्च किया गूगल पे। मेन जब गूगल पे मैंने बुगाटी से मिलता हुआ नाम देखा तो उसने मेरे को सिनाटी दिया, ईगाटी दिया और सिनाटी मेरे को पसंद आया। और सिनाटी का बहुत जगह मैंने कुछ सर्च किया अंदर जाके डीपली, तो सिनाटी का मतलब होता है खूबसूरत। ओके, एंड आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एक खूबसूरती का ही प्रतीक है इन अ वे। हाँ, मैं मॉडिफिकेशन में आया सबसे पहले टेम्पो ट्रेवलर, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ें कैसे बना सकें हम लोग, इसलिए खूबसूरत दिखना चाहिए। आदमी लेज़र पे जाता है, ट्रैवल पे जाता है। आपकी इस इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? आई मीन ओरिजिनली यू आर नॉट फ्रॉम दिस स्पेस। 2000 एक्चुअली में मैं फ्रेंच में एस्कॉर्टिंग करता था, मैं फ्रेंच बोलता हूँ, ट्रांसलेशन करता था। तो 2014 के बाद हर कस्टमर मेरा जो क्लाइंट था, एक बस में 40 पीपल होते थे, वो बोलते थे कि तू गाइडिंग एस्कॉर्टिंग ट्रांसलेशन के लिए नहीं बना, तो बिज़नेस के लिए बना है, तो बिज़नेस के लिए बना। तो मैंने 2018 में रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं। तब जाके किसी ने मेरे को आइडिया दिया कि आप बस बॉडी का प्लांट लगा लीजिए, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि बस बॉडी का प्लांट लग जाए 15 करोड़ 20 करोड़। तो उन्होंने बोला कि टेम्पो ट्रेवलर मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट करो, उसमें कम लगेगा। तो हमने टेम्पो ट्रेवलर मॉडिफिकेशन किया, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में, ये आपको थोड़ा रिस्की नहीं लगा कि एकदम नया फील्ड आप जो करते थे उससे मिलता जुलता भी नहीं है कहीं से? हाँ, ये रिस्की था। एक हमारे जानकार मित्र हैं प्रेम शर्मा जी, ट्रांसएशियनर से, उनके पास मैं गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बहुत रिस्की है, काम करेगा तो ये समझ लो कि 2 करोड़ भी लगाए तो
सब खत्म हो गए, गोलगप्पे की रेहड़ी लगानी पड़ेगी, तब तो बिजनेस करना, नहीं तो मत करना। तो मैंने उनको जवाब दिया कि गोलगप्पे की रेहड़ी लग गई, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने जब शुरुआत की 2019 में, जैसे बता रहे हैं आप, फिर कोविड आ गया इमिडिएटली, क्या आपका मोराल उस वक्त डाउन हो गया कि शुरू करते ही एक बुरा टाइम आ गया? हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? उसमें जैसे ही हमने शुरुआत की, हमने सामान मंगाया, हमारे पास ऑर्डर आ गए और कोविड आ गया। कुछ सामान तो ऐसा था जो 45 डेज़ में एक्सपायर हो गया, तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत वो हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो सब रिश्तेदार दोस्त आके ये बोलने लग गए कि इसको बंद कर दे, तो पागल है, क्यों बैठा है, क्यों पैसा दे रहा है, क्यों कर्जा ले रहा है। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। फिर परंतु मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरी मिसेज, मेरे 3 बच्चे, वो देखते थे मेरे को। मैं सारे दिन कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था, लोग आते थे। मैंने बोला नहीं, मैं बंद नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। अक्टूबर, नवंबर 2020, 21 में मैंने छोटे छोटे काम करने स्टार्ट किए। नीमराना में ही मैं कंपनियों में गया, आपको क्या चाहिए, आपको टेबल बनाना है, किसी ने मेरे को 1000 रुपये का काम दिया, 2000 का काम दिया, 5000 का काम दिया। मैंने गया 2021 में, दूसरा कोविड आ गया, फिर काम, पैसा नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं, घर खर्च के लिए पैसा नहीं। तो मेरे बहुत दोस्त थे जिन्होंने मेरी मदद की कि पैसा हम दे रहे हैं, हम बैठे हैं तेरे, तो कुछ भी तो कर, कुछ कर। मेरे ससुर, मेरे भाई के ससुर, वो आ गए दिसंबर 2021 में, और उन्होंने बोला कि वापिस आप ना हारो मत, हम आपके साथ हैं। और आपको मोरल बहुत डाउन दूसरे लोगों का था, मेरा नहीं था। मेरे पास लोग आते थे सलाह देने के लिए कि तू सुसाइड कर लेगा क्योंकि कर्जा इतना बढ़ जाएगा। तो मैं उनको बोलता था कि मैं आपके घर आऊँगा, कंसल्टेंसी का पैसा दूँगा और आपसे कंसल्टेंसी लूँगा कि मेरे को क्या करना है। राइट, ये था मेरा। फिर मैंने अप्रैल 2022 से वापस टेम्पो ट्रेवलर आने हैं, तो एकदम से बहुत ज़्यादा काम उठा और एकदम से मैंने उसको कैच किया और मेरी मिसेज़ मेरे साथ आ गई। तो हमने दोनों ने 16-18 घंटे काम किया, बच्चों को भूल गए और हमने वापस ट्रैक पे आ गए। क्या आपको लगता है 2022 के बाद जो टूरिज्म सेक्टर या जो पैसेंजर मूवमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा, जिससे आपको फ़ायदा भी हुआ? हाँ, क्योंकि 2 साल काम बंद रहा और 2 साल काम बंद होने से एकदम से काम आया और उससे हमें बहुत ज़्यादा काम मिला। और इस मार्केट में दूसरे लोगों के पास, जो पुराने लोग थे, उनके पास है ना वेटिंग हो गई, तो लोग हमारे पास आए। हमने उनको क्वालिटी दी, डिलीवरी बहुत फास्ट दी हमने, रात दिन काम करके। तो लोगों को हमारे पर विश्वास हुआ। अगर हमारी गाड़ी यहाँ से चली गई और उसमें कुछ दिक्कत आई तो हमने जाके वहाँ पे उसको ठीक किया, सर्विस दी हमने। ऐसा जनरली लोग करते नहीं हैं। फिर 2022 में बहुत अच्छा चला, 23 में बहुत अच्छा चला। तो 23 में जितने भी कस्टमर आते टेम्पो ट्रेवलर वाले, उनके पास बसें भी हैं, वो मेरे को बोलते आप बस क्यों नहीं बनाते, आप बस क्यों नहीं बनाते। तो मैंने जुलाई में बस बनाना स्टार्ट कर दिया, जुलाई 2023 में। और बस बनाते, जैसे ही बस बनी 24 में बहुत ज़्यादा बसें बनाई। फिर 24 में लोग कहने लगे यार स्लीपर बनाओ आप बस। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं स्लीपर बनाऊं। मैंने बोला टेम्पो ट्रेवलर है, अरबानिया है, बस बना रहे सीटर। लोगों ने बोला नहीं, स्लीपर का बहुत बड़ा मार्केट है, रोड बढ़िया हो रहे हैं, सारा कुछ होगा, आपका स्लीपर बहुत चलेगा। क्योंकि इधर नॉर्थ इंडिया में स्लीपर बनाने वाले बहुत कम है। राइट। तो लोगों ने मेरे को बहुत इंकरेज किया। एक विक्रम जी हैं जो कच्छ भुज के हैं, मैं बैठा था, उन्होंने मेरे को बोला सर आप स्लीपर बनाओ। उनकी मैं सीटिंग डिलीवर कर रहा था। अच्छा। मैंने बोला सर मैं बना दूंगा, आप मेरे को 2 चेचिस दो, मैं उस पर R&D करूंगा और 6 महीने 7 महीने तक भूल जाना चेचिस। उन्होंने मेरे को 7वें दिन चेचिस भेज दिए। अच्छा। हाँ, मैंने बोला मैं स्लीपर बना दूंगा। तो उन्होंने मेरे को
चेची भेजे अगस्त 2024 में, और मैंने R&D करके उनको फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में मैंने उनको डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने से पहले लोगों ने देखते रहे कि मैं स्लीपर बना रहा हूँ, तो 20 गाड़ी का ऑलरेडी ऑर्डर आ गया। अगर स्लीपर अच्छी बन रही है, लोग देख रहे थे मटेरियल कैसा यूज़ कर। तो विक्रम जी भुज वालों ने मेरे पर विश्वास किया और उन्होंने मेरे को पैसा भी दिया कि भाई ये मेरी गाड़ी बनाई है, मैं अपने हिसाब से एक चेक काट के देता हूँ, आपको नुकसान नहीं होगा, और हो तो हो, आपने इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने मेरे को एक चेक काट के दिया और मैं उससे सेटिस्फाई था कि उन्होंने मेरे लिए 6 महीने या 7 महीने चीज़ और मेरे कहते ही दे दिया। तो स्लीपर का स्टार्ट हो गया। लेकिन आपने जब बस में आप घुसे, बस जो है बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। बस बॉडी बिल्डिंग कोड हो गया, सेफ्टी एस्पेक्ट्स हो गए। आपने उस पर रिसर्च कैसे किया? कुछ आपने अलग करने की कोशिश की? मैंने अलग करने का, मैंने बसें देखी अलग करने का कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बस बनती हैं वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड से बने। मेरे पास AIS 052 है, हमने स्लीपर बनाई तो AIS 1119 लिया, अब AIS 153 चल रहा है तो वो भी हम ले रहे हैं। और अलग का मैंने मार्केट में सुनता था, मैंने देखा नहीं, मैंने कोई बस बॉडी विजिट भी नहीं की। मैं तो जो वर्कर्स हैं मैंने इंटरनेट का बहुत सारा लिया और मैंने अपने आप को गाड़ियों के नीचे, गाड़ियों के ऊपर वर्कर्स के साथ काम किया मैंने, और उससे मैंने सीखा और पुराने वर्कर्स लाया, गांव से भी लोग लाया। मैं गांव जाके लोग लेके, अब जैसे मेरी सेल्स टीम है 5 लोग, उनका फर्स्ट जॉब है सिनाटी और वो सेल्स कर रहे। मेरे परचेज की टीम में 3 लोग हैं, उनकी फर्स्ट जॉब है सिनाटी में। अकाउंट्स के लोग हैं, उनको 1-1 साल का एक्सपीरियंस था, उनकी भी फर्स्ट जॉब है सिनाटी में। मतलब एक्सपीरियंस वैसे था कि कोई दुकान पे जाके काम कर लिया, वैसे सबकी फर्स्ट जॉब है सिनाटी में। और मैंने इनसे गांव से लाया। लोग बोलते हैं लोकल लोग मत लो, पर मैंने लोकल को बहुत ज़्यादा फेवर किया कि भाई जो लोकल हैं इनको भी काम देना है, यहाँ है। तो ये लोकल लोगों ने मेरे यहाँ सीखा और 2 साल में मतलब मेरी स्टाफ भी बड़ा हो गया और ये सारा बड़ा हो रहा है, मैं इसे कर रहा हूँ। प्लस सेफ्टी की बात, जैसे मेरे यहाँ पे अभी जितने नॉर्म्स हैं, मैं ना बस जो है 3 लोगों के लिए बनाता हूँ। बस में जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए, बस के सराउंडिंग में कौन है उसके लिए, प्लस बस में 3-4 लोग रहते हैं, 2 ड्राइवर रहते हैं, एक कंडक्टर रहता है, प्लस आजकल है ना हॉस्टेज भी हो गए, बस में स्टूवर्ड हो गए। तो वो 4 लोग, वो सब लोगों के लिए बनाता हूँ कि वो जब चलाएं, बस में आदमी बैठा है तो उसको आवाज़ नहीं आए इधर से खड़खड़, वो उसको चार्जिंग की फैसिलिटी मिले। हर एक चीज़ को मैंने AC का ध्यान रखा कि जो आदमी जैसे वह, फिर मैं AC का ब्रांड भी, मतलब उसमें भी अच्छा ब्रांड यूज़ करता हूँ, जेटेक, ट्रांसेसिना। प्लस मैं सेफ्टी की बात कर रहा, सपोज करें आपने ना RVM लगाए, रियर व्यू मिरर, तो मैं उसमें 6 mm की प्लेट लगाता हूँ। आदमी खींचे, अगर वो गिर गया, आप साइड में गाड़ी लेके जा रहे हैं, RVM गिर गया तो आप में 4 आदमी बैठे हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। साइड में डिग्गी खुल गई, फ्लैप, बाइक वाला जा रहा है, सीधा उसकी गर्दन काट दे। क्योंकि मेरे साथ 2013 में मैं उदयपुर से रणकपुर जा रहा था, तब डिग्गी का वो खुल गया था। मैं जब एस्कॉर्टिंग करता था तो मेरे को उस दिन का याद है कि उस दिन बाइक वाला बच गया, सूटकेस गिर गए, तो मैं डिग्गी में साइड में पाइप लगा के देता हूँ जिससे सूटकेस गाड़ी इतनी हिले तो वो डिग्गी ना खुले, क्योंकि साइड में बाइक वाला ही चलता है। बिल्कुल। प्लस सेफ्टी में मैं हर एक तार मेरी FR ग्रेड होती है, FR-LS, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। जो FRP यूज़ करता हूँ वो भी FR करता हूँ, फायर रिटार्डेंट। उसके अलावा मैं तो चाहता हूँ कि FRP बंद हो जाए, मतलब बसों में मैं अब ABS यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हर आदमी लगा रहा है। मैं तो कल आया हूँ इंडस्ट्री में,
पर लोग FRP यूज़ कर रहे थे। मैंने अपने यहाँ पे FRP को 2 साल में 50% कम कर दिया है। अच्छा, बस में मैं ये चाहता हूँ कि ABS लगे या इंडो बॉन्ड लगे, उससे गाड़ी की सेफ्टी ज़्यादा है। FRP कम से कम लगे, और मैंने अपने यहाँ कम से कम कर दिया है। ABS की मशीन लगा दी है और पाउडर कोटिंग करके देते हैं हम चीज़ें लोगों को, CD वगैरह हर एक चीज़ को है ना, पेंट वगैरह। सेफ्टी का दूसरा और क्या किया मैंने कि जो फ्रंट है उसमें मैंने बड़े चैनल लगाए, क्योंकि क्या है, जब भी गाड़ी लगती है ना तो ड्राइवर की टांगें कट जाती। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब R&D की खुद की मैंने देख के कि ड्राइवर की टांगें नहीं कटें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस हादसे होते हैं। आप देखोगे रोड पे फ्रंट इम्पैक्ट में पहला ड्राइवर ही आता है, मतलब ट्रक में भी मतलब ड्राइवर ही आता है। तो उसको मैंने बहुत मजबूत बनाया, ये सारा किया। प्लस चार्जिंग पॉइंट भी हैं गाड़ी में, प्लस हम जो ग्लास लगाते हैं वो सारे टफन गिलास ही लगाते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए टफन गिलास लगेंगे। फ्रंट विंडशील्ड जो है वो लेमिनेटेड होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो तो ड्राइवर के ऊपर ना गिरे, वो बाहर की तरफ गिरे, इस वजह से। और वो टफन तो जैसे खिल जाएगा, और वो सारा हम ध्यान रखते हैं। We will continue our interaction with Naresh on the other side of this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. We are in conversation with the founder of Sinati Automotive, Naresh Kumar Yadav, at his facility in Neemrana, Rajasthan. नरेश जी, इतना कुछ कर रहे हैं तो इसका एक कॉस्ट एलिमेंट भी आता है। इतने फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स आप जब पैक करते हैं तो क्या क्लाइंट्स आपको उतना रेम्यूनरेट करते हैं, या वो कहते हैं कि कहीं पे आप कॉर्नर्स कट करके देखो कहाँ पर आप बचा सकते हो? हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड कॉस्ट? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे को कॉस्ट कम करके दे दो, ये हटा दो, वो हटा दो। मैं मना कर देता हूँ। मेरे को लोगों ने बोला कि ये घमंडी हो गया, पर मैंने बोला कि मैं, ये मेरा रेट है, मैं इससे नहीं नीचे नहीं जाऊँगा, ये मेरा क्वालिटी स्टैंडर्ड है। आप मेरे पास बनवाओगे, मैं आपको बस नहीं बना के दे रहा, मैं लोगों की जान की फ़िक्र करता हूँ। मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट। आप प्लांट में भी घूमें, मेरे पूरे प्लांट में, बस बॉडी इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मेरे पूरे प्लांट में लोगों ने सेफ्टी शूज़ पहने हुए। ये मैंने 1 साल लगा दिया 350 वर्कर को सेफ्टी शूज़ पहनाने में। नहीं सर, मेरे को तकलीफ़ होती है, मैं नहीं पहन सकता, मेरे तो है ना अंदर पैर पसीज जाते हैं। मैंने बोला मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, तकलीफ़ होगी मैं दिखाऊंगा, सेफ्टी शूज़ पहनो। तो मैंने सेफ्टी मेरे लिए बहुत कंसर्न रखता है। अभी जैसे मैं, लड़के प्लास्टिक की बोतल ला रहे हैं,
मैंने उसके लिए कॉपर की बोतल करवा रहा हूँ कि नहीं, प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पियो, सेफ्टी है उनके लिए। मैं सिक्का का सिलेंट यूज़ करता हूँ जो मतलब लेस कैंसरस है, मतलब सिलेंट है ना कैंसरस है, तो मैं लड़कों को पूरा मास्क देते हैं, सारा चीज़ का। सेफ्टी मेरे लिए पहला कंसर्न है। मेरे को पता है कि मैंने 3-3.5 साल में पैसा नहीं कमाया, पर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश में कोई महंगा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, वैल्यू देने वाले लोग बहुत हैं और वो दे रहे हैं। मतलब मेरे को पता है कि मेरे पास लोग आए कि सर आप 2-3 लाख रुपए महंगे हो। मैंने उनको कहा अभी मैं 2-3 लाख रुपए महंगा हूँ और 1 साल बाद मैं और 2-3 लाख महंगा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ और फीचर्स ला रहा हूँ, सेफ्टी फीचर। जैसे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी सारी गाड़ी में 5 FRBB FR ग्रेड का है, मेरी FRLS वायरिंग है, हर एक चीज़। अभी मेरा रेक्सिन जो है स्लीपर में वो भी मतलब FR ग्रेड का है। लोगों ने मेरे को कहा नहीं, मेरे को पता है कि वो महंगा आता है 100 रुपये मीटर, पर वो FR ग्रेड का है, वो टेस्टेड है। आप उसमें आग लगाओगे मेरी कोई गाड़ी में, वो सिकुड़ता हुआ जाएगा, तो उसका वो पहचान है। तो मेरे को पता है कि पैसा मैं कमा लूँगा। अभी तो मैंने स्टार्टअप भी किया, बिल्कुल। पर पहले मैं लोगों को ये तो बताऊं कि भाई नॉर्थ इंडिया में भी कोई अच्छी गाड़ी बना सकता है। सब लोग साउथ इंडिया की बात करते थे, साउथ इंडिया, पर नॉर्थ इंडिया में कोई दिख ही नहीं रहा था। सतलुज था, मैंने नाम सुना हुआ, अच्छा था, मैंने उनकी गाड़ियों में भी काम किया। फिर मेन था डिलीवरी का चक्कर कि आज मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 90 दिन से ऊपर कोई गाड़ी नहीं गई। अब तो हम स्लीपर 45 डेज़ में, कोई हमें पहले बुक करा दे, प्री बुक कर दे, तो हम 45 डेज़ में 45 स्लीपर दे सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ, पहले बुक करा दे 20 दिन पहले कि मेरे को 45 स्लीपर चाहिए और 45 डेज़ में चाहिए, 20 दिन पहले बुक करा दे, उनको मिलेंगी गारंटी के साथ लिख के। वो हमें पैसा दे दें 45 का 50%, और हमारे को बोल दे कि 20 दिन बाद गाड़ी आएंगी। 45 डेज़ 40, क्योंकि अभी भी हम 1.5 बस पर डे का हमारा एवरेज है। अच्छा, हाँ। अभी तक कितने बसेस और आपने टेम्पो ट्रैवलर बनाए होंगे टू डेट? टेम्पो ट्रैवलर आई थिंक 1500 के आसपास मैंने बनाए होंगे। ओके। और बसेस 400 के आसपास पहुंच गई होंगी, और स्लीपर्स जो हैं वो अभी तक 100 का आंकड़ा पहुंच गया, क्योंकि हमने मार्च 2025 में ही किया। 100 स्लीपर हम डिलीवर कर चुके हैं और अभी आ ही रही हैं। वो तो नंबर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो तो रोज़ बढ़ेगा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि अर्बानिया भी हमने मॉडिफाई की हैं, तो 200 के आसपास वो भी। उसमें अर्बानिया में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, कैरियर लग गया, सीढ़ी लग गया, पर्दे लग गए, हाँ। तो वो 200 के आसपास हमने किया। क्लाइंट के कुछ स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे डील करते हो? मे बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस या और एडिशनल फीचर्स, उन सब का प्रोविज़न है? अगर कोई आपको बोले कि हाँ मुझे ऐसा कुछ चाहिए। हाँ, इनका है, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट फिल्टर होके आता है। नंबर 1 कि भाई वो वहाँ पे जाओगे तो नरेश है ना सेफ्टी की बात करेगा, वो बोलेगा कि भाई ये करूँगा। आपने ये बोला कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो बोलेगा अगर फिजिबल होगी, डिज़ाइन ने बोला ओके है, और पर्टिकुलर नरेश को ये लगा कि यार ये ओके है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कस्टमर ने बोला कि यार मेरे को तो ये बना दो, ठीक है, पहले हम ARI के स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, सारे चीज़ पढ़ेंगे। जब हमें लगा कि यार ये हम कर सकते हैं तो हमने किया, नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल स्लीपर्स आ रही हैं। मेरे को एक ड्राइवर ने बोला कि सर आपने जो स्लीपर बनाई है ना, उसमें पूरा पीछे तक का व्यू कम आता है, और मैं वोल्वो चलाता हूँ, वोल्वो में बहुत आता है। तो मैंने एक दिन सामने गया, होटल पे वोल्वो रुकी हुई थी, मैंने उसको देखा अच्छी तरह, निहारा किया। फिर मैंने देखा कि वो आगे से उन्होंने एरोडाइनमिक कर रखी है, तो मैंने अपनी गाड़ी में इम्प्लीमेंट कर दिया। वो ड्राइवर को बुलाया मैंने फ़ोन करके, उसने बोला हाँ सर, उसने ट्रायल लिया कि अब तो बहुत अच्छा दिखता है। तो मेरे को लोग सुझाव देते हैं तो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं
नहीं ऐसा ही होगा, पर स्टैंडर्ड के बाहर नहीं जाता। हो सकता है कि 1 साल पहले मैं चला जाता था। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी मजबूरियां हैं, कुछ लोगों ने मेरे को बोला ओवरहैंग बनाओ, तो मैं बोलता था भाई कोर्ट में एग्रीमेंट लिख दो, लिख देते थे लोग। फिर मैंने बोला यार ऐसा नहीं करना है, एग्रीमेंट नहीं लिखवाना है, अब मैं ओवरहैंग नहीं बनाऊंगा। पिछली बार मैंने डिसीजन लिया कि ओवरहैंग नहीं बनानी तो नहीं बनानी, मतलब तो मैंने बोला मतलब कस्टमर बोलता है कि लिख लो मेरी पर इतनी बड़ी कर दो गाड़ी, मैं बोलता हूँ कि नहीं वो ख़राब है, मेरे को पैसा किस लिए चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। पैसा एक गाड़ी में सपोज करो आपको 2 लाख रुपए बच रहा, आप लाख बचा लो ना भाई, 1 लाख भी बचेगा तो बच रहा है ना, बच रहा है, और जान की कीमत वो उससे बहुत ज़्यादा है। और नहीं भी बच रहा तो रोटी मिल रही है ना, अभी हम और आप बैठे हैं भाई, मैंने तो 3 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बचाया नहीं है, अब बचाना स्टार्ट करूँगा। और क्या है, लोगों को तो पता तो लग रहा है ना कि नरेश यादव एक ज़मीन किसान का बेटा, जिसकी मम्मी अनपढ़, पापा 10th पास, और उसने फ्रेंच भी पढ़ा, उसने बस भी बना दी उससे, और वो मतलब पूरे भारत में घूम लिया, वो यूरोप में गया, वो फ्रांस, चाइना, रसिया, बहुत जगह गया। उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात है मेरे माँ बाप के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि अब आगे तो पैसा कितना भी कमा लो, जाना तो खाली आता है। लेकिन नरेश जी, आप जैसे बाहर भी गए हो, बाहर भी बसेस में आप घूमे होंगे, वहाँ से कुछ लर्निंग्स आपने यहाँ पर यूज़ किया है? कुछ लगा आपको ऐसे कि वहाँ पर कुछ है जो हम इंडिया में या आपके यहाँ पर बसेस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, मैं तो करता हूँ। जैसे उनके इमरजेंसी एग्जिट्स जो है ना, वो मैंने देखे, मैंने मेरे यहाँ बनाए। अभी जैसे जो हादसा हुआ राजस्थान में, तो परिवहन विभाग की टीम आई, मेरी स्लीपर में 5 इमरजेंसी एग्जिट थे, तो वो थे, मैं पहले से ही बना रहा था जो रूल्स के हिसाब से। मैं ना रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाता हूँ, इमरजेंसी टेप, उसकी इमरजेंसी एग्जिट की शीशों पे, पूरों पे, तो भी वो भी दिन में चार्ज होती है सोलर से और रात को चमकती है। वो मैंने एक्चुअली में देखा था फ्रांस में। अच्छा। हाँ, कि यार ये रात में चमकती है, तो मैंने पूछा उनसे क्यों चमकती है। कह रहा कि गाड़ी सारे सिस्टम फेल हो गए गाड़ी के इलेक्ट्रिक, तो ये चमक के दिख जाए ना कि गाड़ी है कोई है। प्लस मैंने यूरोपियंस के साथ बहुत काम किया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, उन्होंने हमेशा है ना सेफ्टी की बातें की मेरे साथ। मैंने 14 ईयर्स काम किया, मैंने केबेक के लोगों के साथ काम किया, कनाडा, हर आदमी ने सेफ्टी की बातें की। मेरे को लोग बोलते थे, फ्रेंच लोग, नरेश हमारे यहाँ है ना लेफ्ट हैंड ड्राइव है, अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव है, और इंडिया में एवरीवेयर। करेक्ट। और मेरे को वो बोलते थे, तो मैं ये बोलता हमारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई सेफ्टी रखो, हम जल्दी पहुँचेंगे, लेफ्ट एवरीवेयर मत चलाओ, लाइन में चलो। ये मेरे को हर टाइम हर यूरोपियन ने बोला कि आपके यहाँ सेफ्टी नहीं है एक्चुअली। तो कुछ लोग हमारे यहाँ है ना, मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 50% का मैं कह सकता हूँ कि लोग इंडिया इसलिए आना पसंद नहीं करते बिकॉज सेफ्टी की वजह से। मतलब वहाँ पे लोग बोलते थे मेरे को, लोग जैसे हम खाने पे बैठे हैं तो लोग बोलते थे, नरेश मेरा बेटा आना चाहता है, पर वो देखता है कि इंडिया में गाय हैं, वो रोड पे घूम रही हैं, कुत्ते हैं रोड पे घूम रहे हैं, बंदर हैं वो घूम रहे हैं। भाई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं खुद एज सिनाटी, हम 1 अप्रैल से एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, बहरोड से नीमराना तक जितनी भी गाय हैं हम उस पर एक सिनाटी का रेडियम का पट्टा डालेंगे जो रात में चमके। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये हर आदमी के पास जाए जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो। बिल्कुल। तो वो मतलब गाय हमारी वहाँ पे हैं, हमारे गौशाला हैं, वहाँ पे जाएं। मतलब ये हम मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से कि पट्टा डालेंगे बहरोड से नीमराना तक हर गाय को रेडियम का,
कि वो चमके रात को, जिससे एक्सीडेंट कम हो। बिल्कुल। तो सेफ्टी में ये हो गया। प्लस हमारे यहाँ ना एक जो मैंने नोटिस किया कि जो आदमी रोड पे जाता है उसको, जो कॉमर्शियल व्हीकल वाला है ना, उसको गाड़ी अच्छी चलानी आती, परंतु पुलिस आरटीओ उसी को ही रोकता है। जो जिसकी वाइट नंबर प्लेट है उसको मैं देखता हूँ, उसको गाड़ी अच्छी नहीं चलानी आती। बहुत लोगों को मैं सबका नाम नहीं ले रहा, पर उसको कोई नहीं रोकता, उसको कोई नहीं रोकता। सब नॉर्म से जाते हैं। मैं तो सेफ्टी का मतलब, हमारे लोग क्या है कि बस बना रहे हैं हम लोग। अब बस है 13.5 मीटर की, अब 15 मीटर की भी आ गई। अब उसके लोग, मैं कई बार देखता हूँ रोड पे चलता हूँ ना, तो उसके चारों तरफ लगा देते हैं, उसको इतना हॉर्न मारते हैं, ड्राइवर को इतना पैनिक कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि 15 मीटर की बस है, एक बार ये हो गया तो वो तो गया। हाँ, दे डोंट रियलाइज। हाँ बिल्कुल। तो मैं सेफ्टी में मैंने यूरोप का स्टैंडर्ड मेरे को बहुत पसंद है। इवन मैं चाइना गया, वो भी सेफ्टी में बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंडिया के बाहर आप कहीं भी जाओ, एक सेफ्टी पे एक जेन्युइन फोकस है। हमारे यहाँ पे बातें होती हैं, लेकिन ऑन रोड आप देखो तो कुछ नहीं होता। अब हम सारी स्लीपर में ना पैनिक बटन लगा रहे हैं और VLTD करा ही रहे हैं। बाद में की ज़्यादा बन रही है हमारे पास स्लीपर्स, लीलैंड की बन रही, तो भारत बेंज ना पैनिक बटन देता है। दिस इज गुड। तो वो पूरी वायरिंग देता है और 15 पैनिक बटन देता है। अगर एक पैनिक बटन भी आपने उसमें एस्केप कर दिया तो वो चालू नहीं होगा। मतलब आपने कहीं वायर कट कर दिया आपके मैकेनिक ने, तो वो ऑनलाइन नहीं होगा। तो दिस इज़ गुड ऑल्सो। तो वो कर रहे हैं। अभी दूसरे लोग भी देने लगे हैं पैनिक बटन, पर भारत बेंज में तो आते ही हैं। और हम भी लगाते हैं पैनिक बटन, GPS भी लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ये है। उसके अलावा अभी मैंने ये सोचा है, कुछ दिन से मेरे को किसी ने बताया कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं डिग्गी की बात कर रहा था कि उसमें भी एक सेंसर लगाऊं कि वो थोड़ी बहुत भी खुल जाए तो ड्राइवर के पास अलर्ट आ जाए। ये मैं करूँगा, ये मैंने ठान लिया है। क्योंकि वो भी लगा दिया मैंने, पाइप भी लगा दिया, उसने बंद भी कर दिया। मैंने शोकर भी ज़्यादा न्यूटन का लगा दिया जिससे वो बाहर ना खुले। राइट। फिर भी थोड़ा सा भी बाई खुल जाए, चांस अगर हाँ, तो वो भी मैं लगा रहा हूँ। नहीं जी, एक जो आर्गुमेंट हर बार आती है, मैं काफ़ी टाइम से मैंने ये सुनी भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो OEM, जो फैक्ट्री फिटेड, जो फैक्ट्री बिल्ट बसेस होती हैं, दे आर मोर सेफ, दे आर मोर कंफर्टेबल। आप उनके साथ कैसे compete करते हैं? सर OEM फिटेड आती हैं, चीज़ तो वही होता है, और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स हैं। जो बाकी बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स अपने हिसाब से बना लेते हैं। नहीं सर, मेरे भी स्टैंडर्ड, सिनाटी में स्टैंडर्ड फिक्स है। मतलब स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया कि मैंने फिक्चर बनाए हुए हैं। OEM के पास भी फिक्चर्स होते हैं। मेरे पास लेफ्ट का फिक्चर है, राइट का फिक्चर है, रूफ का फिक्चर है, फ्रंट का फिक्चर है। तो मेरे यहाँ जो टॉलरेंस है वो ±5 mm ही है। ऐसा ही OEM में होता है। मेरे यहाँ सीटें भी जो हैं, मतलब मैं कोई भी सामान जो लगाता हूँ उसको टेस्ट, और मैं गाड़ियों में मतलब ये श्योर है कि मैं हर 7 दिन में एक गाड़ी को 50 किलोमीटर चलाता हूँ, बस को। अच्छा। खुद चला के आता हूँ वो चेक करने के लिए कि यार इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। और मैं ये नहीं कह सकता कि OEM की ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। मैं ये कहता हूँ कि हमने जो किया है, इंटीरियर भी किया है, प्लस जो मैंने जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है ARAI के या CIRT के कि इससे ज़्यादा वेट नहीं जाना चाहिए, वो सब मेंटेन किया है मैंने हर एक चीज़ को करके। और मेरी गाड़ी कंफर्टेबल होती है। मेरी गाड़ी में LCD TV होती है क्योंकि दूसरे जाना होता है। माइक होता है, आहूजा का माइक लगाते हैं, वो बहुत फेमस है आहूजा। हाँ, हम सैमसंग का LCD लगाते हैं। प्लस हम है ना स्टीरियो भी लगाते हैं।
उसमें यूट्यूब से आजकल कनेक्ट कर सकता है। मैं हाईटेक प्लस मैंने आज से 2 साल पहले सी टाइप चार्जर लगाना ना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। 2 साल पहले मेरे को पता था वही आएगा। तो मेरी गाड़ियों में स्लीपर्स में तो अब 3 तरह के चार्जर हैं, 2 पिन प्लस USB प्लस सी टाइप। ओके। मैं 3 पिन नहीं लगाता क्योंकि कई बार क्या करते हैं स्लीपर्स में बंदा केटली लगा देता है तो पूरी देखो मैंने तो उसको FR ग्रेड कर दिया, वो कर दिया, पर लोड कहाँ चलेगा वो, मतलब हॉट केटली लगा रहा है तो वो लोड लेगी नहीं, इसलिए मैंने उसको 2 पिन करना पड़ा। तो मैं हर एक चीज़ को वीटो कंपनी के चार्जर लगाता हूँ, मतलब मैं हर एक चीज़ टेस्टेड सर्टिफाइड सेफ्टी की, पोली कैब की हम FRLS ले रहे हैं, वायर भी। तो मैं तो हमेशा, क्योंकि मैंने रोड पे या 1-2 कंपनियां देखी हैं, हम इवन प्लाई भी डालते हैं ना नीचे, वो भी हमारा हार्ड वुड है। ओके। हार्ड वुड जो मतलब प्रेस होके आता है, 24 mm को 19 mm बनाते हैं और वो वाटरप्रूफ है। और जब हम उसको लगाते हैं ना तो हम लगाने के लिए उस पर भी नीचे सिलेंट लगाते हैं चारों तरफ। अच्छा। कि नीचे से अंदर से मिट्टी ना आए। राइट। तो मैं ना एज ए सिनाटी डायरेक्टर, एज सिनाटी मैं बोलता हूँ, मैं लोगों को कह सकता हूँ मेरे यहाँ पे लोग विजिट करें, इवन OEM विजिट करें, मेरी गाड़ी बेस्ट है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं फीचर्स तो डाल रहा हूँ प्लस पूरा MS में लगाता नहीं हूँ, सारा GI लगाता हूँ। ओके। GPSP लगाता हूँ, एल्यूमिनियम लगाता हूँ, SS लगाता हूँ। तो क्वालिटी में कोई कमी कहीं पर आपने नहीं छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। मैं PVC भी LG का लगाता हूँ और वो मेड इन कोरिया है। ओके। हाँ, मतलब मैंने मेरे को पैसे से वो नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि सिनाटी की विजिबिलिटी रहे। कोई जाए तो वो उसको रोड पे 5-6 गाड़ी तो एटलीस्ट दिखे सिनाटी की, ये भी सिनाटी की बनी हुई, ये भी सिनाटी की बनी हुई, बस उसी में ही मेरे को तो खुशी है। और लाइफ में मेरा क्या है कि मैं ग्रीडी आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे ज़्यादा शौक नहीं है, मेरे थे पहले जब मैं ट्रांसलेशन करता था। अब तो ये है कि चलो भाई ठीक है, अच्छा है, लोगों का कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए बस कुछ दे दें, जितनी ज़िंदगी है कुछ दे दें। नहीं जी, आपका जो अभी फैसिलिटी में देखा तो वो काफ़ी पैक्ड है, मतलब, और आपके ऑर्डर बुक्स भी अभी काफ़ी भरे हुए होंगे, आई एम श्योर। एक्सपेंशन के बारे में क्या सोचा है आपने? सर, मैं एक्सपेंशन के लिए जगह देख रहा हूँ। मेरे को 20 एकड़ जगह चाहिए और उसकी मेरी बात भी चल रही है नीमराना में। अगर वो हो गया तो मैं बहुत जल्दी वो भी ले आऊँगा और उसमें मैं EV पे भी जाऊँगा। ओके। नरेश जी, फाइनली आपने, आपका मेजर जो करियर है वो फ्रेंच ट्रांसलेशन और उसमें रहा है। अगर आपको अपनी कंपनी और आपके बारे में 2 लाइनें फ्रेंच में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो, वो क्या होगा? Je m'appelle Naresh. Je suis né dans un petit village du Rajasthan. J'ai appris le français à Pondichéry et j'ai fait aussi l'agriculture avec mes parents. Depuis 2006 à 2019, j'ai guidé les Français, les Belges, les Suisses et les Québécois. Après, j'ai ouvert cette entreprise Sinati et maintenant je travaille dans cette entreprise. Pour moi, je ne dis pas que je suis directeur, je suis toujours un ouvrier de Sinati. Et mon motif, c'est toujours pour la sécurité des gens. Gracias. Thank you, Naresh ji. It is very clear that Sinati Automotive has a razor-sharp focus on safety, and even if it means having a lesser margin, Naresh is not ready to compromise on quality or safety. The company is now prepared to take the next big leap with its expansion plans as it prepares to move India's population with comfort and safety. You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions. We will be back again next week with another interesting conversation. So until next week, stay safe and drive safe.
जय हिंद।